आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। उर्दू खबरनामे से पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक नजर। भारतीय फिजाइया आज अपना 88वां यौम तासीस मना रहा है। हिंडन एयरबेस पर एयरफोर्स अपनी ताकत का कर रहे हैं मुजाहरा। राफेल जंगी तैयारी की भी हो रही है नुमाइश। एलजी मनोज सिन्हा का राजौरी दौरा, कई तामीराती प्रोजेक्टों का करेंगे इफ्तिताह। अवामी वफूद से भी होंगे मुलाकात। सुरनकोट के लोगों ने की शिकायत, सब जिला अस्पताल में वेंटिलेटर की कमी से मरीजों को मुश्किलात। आला हुक्काम से आवाम की मुश्किलात दूर करने की अपील। और मसीवाड़ा पट्टन में बिजली की अदम दस्तियाबी से लोग परेशान। बिजली न होने की वजह से तालिब इल्मों की तालीम हो रही है मुतासिर। इलाके में बिजली सप्लाई बहाल करने की दोहराई मांग। अब पेश है खबरों की तफसील। भारतीय फिजाइया आज अपना 88वां यौम तासीस मना रहा है। इस मौके पर एयरफोर्स गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर एयरफोर्स अपनी ताकत का मुजाहरा और राफेल की नुमाइश की जा रही है। वाज़ेह रहे कि इस बार राफेल को भी एयरफोर्स के बेड़े में शामिल किया गया है। ताम राफेल के अलावा इस फिजाई के कई दूसरे लड़ाका तैयारे अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एयरफोर्स डे के मौके पर भारतीय फिजा के सभी बहादुरों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि ये न सिर्फ मुल्क की फिजाई हदूद को महफूज रखते हैं बल्कि आफात के वक्त इंसानियत की खिदमत में भी सफ़ अव्वल का किरदार अदा करते हैं। Ladies and gentlemen, please rise in honor of the Air Force colors as they are marched off. Uniformed personnel shall salute. देवियों एवं सज्जनों, Provides an ideal setting for a spectacular air display. This display is an outcome of focused training and professionalism of the Ladies and gentlemen, this year has indeed been an unprecedented one. As the novel coronavirus spread rapidly across the globe, our nation's response was firm, and IF on its part instituted various proactive measures to counter the spread and minimize the disruption in our functioning. The tenacity and resolve of our air warriors ensured that the IF continued to retain its capability and capacity to undertake full-scale operations throughout this period. In fact, we deployed our transport and helicopter aircraft promptly during the lockdown to support COVID-19 tasks, pan-India as well as abroad, wherein we flew almost 750 hours, including many missions to bring back stranded Indians across the globe. The evolving threat matrix in our region is becoming complex, ranging from aspirational adversaries with huge investment in military arsenal to those collusively supported by non-state actors, apart from growing sub-conventional threats emanating from terrorism and cyberspace. Disruptive technologies and easy access to low-cost options like drones are increasingly demanding greater attention to the sub-conventional domain.
I would like to commend all air warriors for the quick response in the recent standoff on frontiers. When we deployed our combat assets at short notice to handle any eventuality and provided proactive support to all the requirements of deployment and sustenance for the Indian Army. We have clearly demonstrated our resolve, our operational capability, and the will to effectively engage the adversary should the need arise. The emerging security scenario mandates a greater need to have a strong air force to fight across domains across the entire spectrum of the warfare. Our vision for this decade is to continue to comprehensively scale up our combat capability and be a force to reckon with across the entire sphere of influence. Through careful force structuring, modernization, operational training, and acquisition of indigenous equipment to achieve substantial self-reliance. अवामी शिकायत का अजाला करने के लिए बैक टू विलेज 3 के हवाले से जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा राजौरी के दौरे पर हैं, जिस दौरान वो मुख्तलिफ पंचायतों में अवामी वफूद से मिलेंगे और दौरे के दौरान कई तामीराती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद और इफ्तिताह भी करेंगे। दौरे के दौरान मनोज सिन्हा अमशीपुरा मुबैना फर्जी झड़प में जाम बाक हुए 3 नौजवानों के घर जाकर लवाकिन से भी मुलाकात करेंगे। बैक टू विलेज 3 के सिलसिले में जहां जम्मू कश्मीर के LG मुख्तलिफ इलाकों का उन्होंने पहले ही दौरा किया और आज वो राजौरी के दौरे पर हैं, जहां वो मुख्तलिफ अवामी वफूद से भी मुलाकात करेंगे, अवामी नुमाइंदों के साथ साथ भी मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ अमशीपुरा फर्जी एनकाउंटर के हवाले से जो जाम बाक 3 नौजवान हैं उनके घर जाकर लवाकिन से भी मुलाकात करेंगे। अवामी शिकायत का अजाला करने के लिए बैक टू विलेज 3 के हवाले से जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा राजौरी के दौरे पर हैं, जिस दौरान वो मुख्तलिफ पंचायतों में अवामी वफूद से मिलने के बाद अवामी नुमाइंदों से भी मिलेंगे और साथ ही साथ दौरे के दौरान इलाके में कई तामीराती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखने के साथ साथ भी वो इफ्तिताह करेंगे। दौरे के दौरान मनोज सिन्हा 18 जुलाई अमशीपुरा शोपियान में मुबैना फर्जी झड़प में जाम बाक हुए 3 नौजवानों के घर जाकर लवाकिन से भी मुलाकात करेंगे। इस खबर पर मजीद तफसीलात के लिए मजीद बात करने के लिए सीधा राजौरी चलते हैं, जहां हमारे साथ जुड़ चुके हैं जमशीद मलिक। जमशीद, क्या कुछ ताज़ा अपडेट हैं? आज मनोज सिन्हा जो राजौरी के दौरे पर कितने बजे पहुंचने वाले हैं और किन लोगों से मुलाकात होगी? जी गौर, आपसे थोड़ी देर बाद मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर का ये पहला दौरा राजौरी का शुरू होगा, जहां वो आज एक पीडी में बैक टू विलेज प्रोग्राम में भी हिस्सा लेंगे। उसके साथ साथ जो शोपियां में फर्जी इनकाउंटर में जाम बाक 3 लोग हुए थे उनके अहले खाना से भी उनकी मुलाकात होगी और उसके बाद ये पीडी का फंक्शन मैन उनका रहेगा, क्योंकि इन इलाकों में बैक टू विलेज प्रोग्राम को लेकर काफी लोगों में जोश देखने को मिलता है। खास करके अगर हम इस पीडी इलाके की बात करें, यहाँ सुबह से ही सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं और इस वक्त पूरी तैयारियां कर दी गई और ये कहा जा रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद वो राजौरी में पहुंच जाएंगे। जी जमशीद, जरा ये बताएगा लोगों का क्या कुछ इस हवाले से रुझान सामने आ रहा है, क्योंकि एक तरफ अगर हमने देखा है कि जम्मू के अंदर भी और वादी कश्मीर के अंदर भी मुख्तलिफ इलाकों की जानिब मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जहाँ आम लोगों के साथ साथ जो अवामी नुमाइंदे हैं उन्होंने भी बैक टू विलेज प्रोग्राम का जो बाइकाट किया है, तो इस हवाले से आज राजौरी के अंदर किस तरह का लोगों का रुझान देखा जा रहा है? देखो और बिल्कुल बैक टू विलेज की अगर बात करें तो कल बुद्धल केवल पंचायत में लोगों ने बाइकाट किया उसका, बल्कि वो हाथ में बैनर उठा के खड़े थे कि बैक टू विलेज प्रोग्राम का वो हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि बैक टू विलेज के पहले 2 पार्ट में जो इंतजामिया की तरफ से जो मुलाजमीन की तरफ से जो दावे किए गए थे वो जमीनी सतह पर कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आए, जिसके चलते उनकी तरफ से बाइकाट किया गया था। पीडी के प्रोग्राम में भी बड़ी तादाद में इस वक्त लोग पहुंचे हुए हैं और आने वाला वक्त जिस तरह है, क्योंकि पीडी एक ऐसा इलाका है, बहुत दूर दराज का इलाका है जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर पहुंच रहे हैं और लोगों में काफी
काफी उम्मीदें हैं इन इलाकों को लेकर, क्योंकि यहाँ के इलाके की बात अगर कम करें, यहाँ सड़क, बिजली, पानी जैसी सहूलियात की लोगों की तरफ से डिमांड की जाती है। जो हालांकि अगर हम ये कहें कि पीड़ी राजौरी सड़क की बहुत ज्यादा खस्ता हालत है, उसको देखते हुए ये लोगों की तरफ से जरूर डिमांड की जाएगी, मगर लोगों में काफी जोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर का ये राजौरी का पहला दौरा और पहले दौरे में ही वो दूर दराज के गांव पीड़ी में आज बैक टू विलेज 3 का हिस्सा बनेंगे, जहां वो लोगों से बात करेंगे, उनकी बात सुनेंगे और उनकी मुश्किलात का हल करने की यकीन दहानी भी होगी और काम भी होंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद मलिक आपका। ये थे राजौरी से जमशेद मलिक जो बात कर रहे थे, जहां एलजी मनोज सिन्हा का राजौरी का ये पहला दौरा है। उस सिलसिले में जहां लोगों की तरफ से जो उत्साह देखा जा रहा है, जमशेद मलिक का मानना है कि वहां पर लोग काफी खुश है कि मनोज सिन्हा पहली बार राजौरी का दौरा कर रहे हैं। वहां पर अवामी वफूद से मुलाकात करेंगे, अवामी नुमाइंदों से भी मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ इलाके में कई तामीराती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करने के साथ साथ भी वो सग बुनियाद रखेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर आ रही है वजारत दिफा के हवाले से। वजारत दिफा ने सालाना रिपोर्टों की वेबसाइट से हटाया है। वजारत दिफा ने सालाना रिपोर्टों को अपनी वेबसाइट से हटा दिया है। कई रिपोर्टों में चीन के साथ जो मामला दर्ज नहीं थे, साथ ही साथ वजारत दिफा की कार्रवाई पर भी जो है हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों की जानिब से जो सवाल उठाए गए हैं। रवां माह के आखिर तक जो है वेबसाइट को पूरी तरह से अपडेट किया जाएगा। वजारत दिफा की जानिब से ये बयान सामने आया है। जराये का फिलहाल ये भी मानना है कि रवां माह के आखिर तक जो है वेबसाइट को पूरी तरह से अपडेट किया जाएगा। पहले ही वजारत दिफा की जानिब से इस सिलसिले में वेबसाइट पर जो रिपोर्ट है उनको हटाया गया है, जिसके बाद ही हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों की जानिब से वजारत दिफा और सरकार पर जो है सवाल उठाए गए हैं। अब एक और बड़ी खबर आ रही है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के हवाले से। जाली तालीमी यूनिवर्सिटियों की लिस्ट जारी। खरसाल लिस्ट में कई नई यूनिवर्सिटियों का नाम भी शामिल हो रहा है और इस सिलसिले में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की जानिब से एक फहरिस्त जारी की गई हैं, जिस दौरान दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र समेत कई रियासतों में जाली यूनिवर्सिटियां हैं और यूजीसी ने जाली यूनिवर्सिटी की नई फहरिस्त जारी की है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की जानिब से जो जाली यूनिवर्सिटियां, उस हवाले से तफसीलात जो है फराम की एक फहरिस्त जारी की हैं, जिसमें दिल्ली के अंदर जो है कमर्शियल यूनिवर्सिटी, दरियागंज दिल्ली के अंदर यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी, दिल्ली के अंदर जो है वोकेशनल यूनिवर्सिटी, एडीआर सेंट्रिक जुडिशियल यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग और साथ ही साथ कर्नाटका के अंदर अबादा नंगवी सरकार वर्ल्ड ओपन यूनिवर्सिटी और साथ ही साथ केरला के अंदर भी जो यूनिवर्सिटीज़ है जाली यूनिवर्सिटी, उनकी फहरिस्त जो है वो जारी की है। मुख्तलिफ महकमों में मुतारिफ की गई स्कीमों को ज़मीनी सतह पर अमलाना जहाँ इंतजामिया की अवलीन तरजीहात में शामिल है, वहीं बैक टू विलेज प्रोग्राम के दौरान हर पंचायत में आवाम के मसाइल को हल करने की कोशिश की जाएगी। इन बातों का इजहार जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग ने हमारे साथी पीर मुजफ्फर के साथ बात करते हुए किया। अगले साल के प्लान है, चाहे महात्मा गांधी नरेगा का प्लान है, 15th FC का प्लान है, या हमारे जल शक्ति के जो प्रोग्राम है, वाटर कंजर्वेशन के वर्क्स है, और सबसे बड़ी बात है कि इंडिविजुअल बेनिफिशियरी स्कीम जो है, सोशल असिस्टेंस के जो स्कीम्स हैं, चाहे सोशल वेलफेयर की है, चाहे लेबर की है, चाहे आधार कार्ड है, चाहे जॉब कार्ड है, चाहे राशन कार्ड है, और सबसे बड़ी बात स्कॉलरशिप्स है। तो इसके ऊपर भी सारा जो जोर है कि ये सारी सैचुरेट होनी चाहिए पंचायतों में। और दूसरा जो है कि जो हमारे स्पेशली एबल्ड है, जो बच्चे हैं या जो भी है किसी भी एज ग्रुप का है, उनकी जो प्रोस्थेटिक एड से इम्प्लांट्स की नीड है, उसको भी एसेस किया जाए। 2 अहम मसले आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ। एक तो एक स्कूल 1925 में एस्टेब्लिश किया गया है लाहौर कुकरनाग में, लेकिन लम्हा फिक्रिया यह है कि इतना टाइम गुजर जाने के बावजूद अभी तक वो बिल्डिंग से नामालूम है, जबकि वो हाई स्कूल है, इसको प्राइवेट बिल्डिंग में। दूसरा ये कि हर जगह पर इस वक्त जल शक्ति मिशन पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन हमारी फिक्रिया यह है कि कांडीवारा बिल्कुल गुजर बस्ती जहाँ पे वो बूंद बूंद के लिए तरसने पानी के, इस हवाले से आपका क्या कहना है जनाब? देखिए, बहुत अच्छी बातें आपने उठाई हैं। हम लोग इस बैक टू विलेज में भी हर पंचायत में वैकेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। वैकेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग्स मतलब जो कहीं या तो अधूरी रह चुकी हो या अबेंडेंट हो, या हमारे स्कूल जो क्लब हो चुके हैं उसमें से भी कई ऐसी बिल्डिंग्स हैं और जो हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब एक कल हम बिजबिहाड़ा परसों में और ऐसे बिजबिहाड़ा गए थे, वहाँ पर ऑन स्पॉट हमने एक वैकेंट बिल्डिंग
क्योंकि वहाँ PSC एक छोटा चल रहा था, हेल्थ सेंटर चल रहा था, वो एक रेंटेड बिल्डिंग में था, तो हमने ऑन स्पॉट वो BMO का हैंडओवर कर दिया, वहाँ पर वो शिफ्ट हो गया है। हम इसी हवाले से इस एरिया में भी देखेंगे, अगर कहीं वैकेंट बिल्डिंग्स हैं या अगर कहीं ऐसी कोई और हमारे पास एसेट कोई अवेलेबल है जहाँ पर स्कूल को शिफ्ट किया जाए। अगर नहीं होगा तो इसका हम प्लान में रखेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आने वाले सेशन में इस स्कूल के पास अपनी खुद की बिल्डिंग हो और बच्चों को एक ऐसा जो अच्छा एटमॉस्फेयर मिले पढ़ने का। दूसरा, आपने बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात की, फेज 3 में जो कि दिसंबर 22 तक है, तो सारे अंतरराष्ट्रीय डिस्ट्रिक्ट को सैचुरेट किया जाएगा, सभी हैमलेट्स में पीने का पानी मुहैया किया जाएगा। डोडा में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए महकमे जल शक्ति ने अगरचे कई हैंडपंप नस्ब किए थे, ताहम पिछले कई सालों से वो नाकारा पड़े हुए हैं। मकामी लोगों का कहना है कि जनरल बस स्टैंड और दीगर मकामात पर नस्ब किए गए हैंडपंप पिछले कई सालों से नाकारा पड़े हुए हैं, लेकिन इनको ठीक नहीं किया जा रहा और इन हैंडपंपों का नाकारा बन जाना अवामी मसाइल में भी इजाफा हो रहा है। उन्होंने मुतल्लिका महकमे के आला हुकाम से अपील की है कि हैंडपंपों को ठीक करवाया जाए। आज कोई 2-4-5 साल पहले लगाया है सर, 2 महीने चला, उसके बाद ये बंद हो गया। किसी ने नजर, बहुत गरीब लोग हैं सर, कहाँ खरीदेंगे पानी सर? 10 रुपए की 20 रुपए की बोतल सर पानी पीते के लिए। यहाँ PHE वालों ने स्कीम में इतना पैसा खर्च करती है, गवर्नमेंट किस लिए करती है? अब गरीब आवाम के लिए, पब्लिक के लिए। जब यही स्टैंड नहीं है तो क्या फायदा है इस बस स्टैंड का? इसके अगर देखभाल करे, इसको रिपेयर करे, इसको पानी चलाएं, लोगों को बेनिफिट मिलेगा। ये हैंडपंप की बात है, पाइपों की लीकेज देखो, ये तारें देखो, BSNL ने अपनी लगाई है, केबल ने तो यहाँ कुछ नहीं है, वही हाल इन हैंडपंप्स का है। हालांकि इससे योमिया डोडा टाउन में हजारों लोग, दसियों हजार लोग इन हैंडपंप से जो है फायदा होता था उनको, लेकिन बंद है, क्या करेंगे? कोई मानता ही नहीं। काफी पैसा इन पे खर्चा गया है। नहीं, जब रकम खर्च होती है, जब इनाग्रेशन होती है, तब तो ये बड़े ऐलानात करते हैं, अब ये होगा, अब इसका ये डायमेंशन है, वो डायमेंशन है, लोगों को ये फायदा होगा, वो होगा, लेकिन फिर यही हाल है आपके सामने है। अब हम तो मायूस हम मायूस हैं, हम कहते हैं यार करना है तो करो, नहीं करना है। अब हमने इस चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है, टू बी वेरी ऑनेस्टली। हमको होप ही जब नहीं है तो डिमांड क्या कर दी है। साल 2017 में वज़ीर आज़म की जानिब से शुरू की गई सौभाग्य स्कीम के तहत अगरचे शहरी इलाकों के साथ साथ दूर दराज दही इलाकों में हर घर तक बिजली पहुंचाने का अमल शुरू किया गया। ताहम शुमारी कश्मीर के मसीमार पट्टन इलाका आज भी बिजली से महरूम है। बस्ती के लोगों का कहना है कि बिजली की अदम दस्तियाबी की वजह से न सिर्फ उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बल्कि कॉलोनी के तालिबे इल्मों की तालीम भी मुतासिर हो रही है। उन्होंने मुतल्लिका महकमे के आला हुकाम से अपील की है कि इलाके में बिजली सप्लाई बहाल की जाए ताकि उनकी मुश्किलात दूर हो सके। जब लाइट ही नहीं पड़ेंगे कैसे शाम को, ये ना फ्यूचर के बारे में भी नहीं सोचते हैं। हमारा फ्यूचर खराब कर रहे हैं ये लोग। बिजली डिपार्टमेंट क्या कह रहा है, क्योंकि वो कहते थे कि हम उन तक भी पावर पहुंचाएंगे जो फार फ्लंग एरियाज में, बिल्कुल आप हाईवे के साथ में। क्या ये सब झूठ है। अगर कहा तो किया क्यों नहीं? हम भी तो मेचमर मिरगुंड पे रोजान वोल गई आज ये 20 वरी बसान ये कॉलोनी मज। रोडच प्रॉब्लम, आबच प्रॉब्लम, तो बे बोड़ बार मसल पावर। पावर वनुक तान वुचमुत बुथ। बच्चे पारान मे क्या बच्चे पारान TDCS वन शमा तल करान स्कूल कम, तीस जबरदस्त प्रॉब्लम। दोम चीज मसल थक्र पावर डिपार्टमेंटन गसान सन काकद तम बुखार बरान, तत गाव खेवान क्या गसान सुना। श्रीनगरस बसान 14 किलोमीटर दूर डिस्ट्रिक्ट बारामूला। शुमाली कश्मीर के शिरपुर संग्राम में लोग जहां आज के दौर जदीद में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं, वहीं दूसरी जानिब साल से राबता सड़क की खस्ता हालत को दूर करने के लिए कोई भी महकमा सामने नहीं आया, जिस दौरान मकामी बस्ती के लोगों ने अपनी मदद आपके तहत कई लाख रुपए जमा करके इस सड़क की मरम्मत की। मकामी लोगों का कहना है कि कई मरतबा महकमे PWD और PMGSY से मुतालबा भी किया गया और सड़क की हालत को बेहतर बनाने के लिए एहतजाज भी किया गया, लेकिन इसके बावजूद न ही इंतजामिया ने तवज्जो दी और न ही सरकार ने इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत समझी। उन्होंने अब इंतजामिया से अपील की है कि इलाके में एक हाई स्कूल कायम किया जाए ताकि इलाके के बच्चे भी इल्म के नूर से मुनव्वर हो सके। सर, आज तकरीबन 2-3 साल पहले हमें रोड ख़राब हुआ, स्लाइड हुआ बारिश की वजह से।
फिर हम गवर्नमेंट के पास गए, मेंबर असेंबली उस वक्त बशारत बुखारी था, उसके पास भी गए, लेकिन कोई सुनाई नहीं हुई। फिर हमने एक बात की, मैंने बरादरी से अपना फैसला लिया, बरादरी से मशवरा किया, भाई आप एक बात करो, हर एक गांव का हर एक चूल्हे में 1,000 रुपया दे दो, बाकी जिसको मर्जी है 10,000 कोई देगा, 20,000 कोई देगा। 11 लाख रुपया हमने खर्च किया और हमने रोड खुद बनाया। बैक विलेज सर, जो बैक टू विलेज चलता है इस वक्त, 2 साल पहले भी चला, आज भी चला, हमें कोई काम नहीं है बैक टू विलेज का। ये बिल्कुल कुछ, इसका कोई फायदा नहीं हमें। अगर ये साबित करके देगा, मैं गवर्नर साहब से अपील करता हूँ, आप ये साबित करके दे दे जनाब, इनसे पूछिए कि कौन सा काम आपके हल्का शरपोरा में किया है, कौन सा काम किया है। ये सिर्फ अपने पैसों के लिए खर्च करते हैं। मैं सीधी सी बात बोलता हूँ, हम अपील करते हैं कि हाँ, अगर हाई सेकेंडरी हमें दे दे तो फिर यहाँ पढ़ सकते हैं वो बच्चे, मगर रोड तो है नहीं, कहाँ जाए, जबरदस्त मुश्किलात हैं, कोई नहीं पढ़ते हैं, सब घर में बैठे हैं। आज से 6 साल पहले हमारा रोड वैद्यना के पास डैमेज हो गया, धस गया, लैंडस्लाइड हो गया। हमने वो तमाम मिनिस्टरों, तमाम डीसी, तमाम एसपी, हर एक डिपार्टमेंट से हमने रुजू किया, मगर किसी ने कोई हमारी सुनवाई नहीं की। हमने गाँव में वालों ने मिलके हेलशेरी करके 12 लाख रुपया उसमें लगाया, वो बंड बनाया, वो आज भी वहाँ मौजूद है। उस बंड से हम वैद्यनाथ से या कहीं और जा सकते हैं, मगर रोड की ऐसी खस्ता हालत है, अगर थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है, कोई प्रेग्नेंट लेडी हो, हम उसको डिलीवरी होगी, हम उसको 4 पाई पे वैद्यनाथ तक ले जाते हैं, जहाँ हमारा मेन रोड है वहाँ तक हम उसको 4 पाई पे ले जाते हैं। उसके बाद हमें कोई गाड़ी लिफ्ट ढूंढना पड़ता है, तब हम जाके अस्पताल पहुँच। पिछले बार जब फेज फर्स्ट या बैक टू विलेज हो गया, उस टाइम RDB वालों का एक जेई था यहाँ, उन्होंने बोला कि हमने 9 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट रखा है, शरपोरा के लिए 9 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट रखा है, इंशाल्लाह जल्दी वो हो जाएगा। तब से अब तीसरा फेज भी आने वाला। उसके बाद उसने बोला नहीं, मैंने अब 2 लाख रुपए इसमें रखा है पैचिंग के लिए। उसके बाद उसने बोला कि मैंने मैकडम रखा है, अब पैचिंग नहीं करूंगा, मैकडम करूंगा। मगर आज की डेट में जब हम उससे राब्ता करते हैं, वो बोलते हैं मेरा ट्रांसफर हो गया, सोपोर मेरी ट्रांसफर हो गया, अब मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। उसके कोविड के फैलने के बाद जहां सरकार ने खुद पीर पंचाल के अस्पतालों में वेंटिलेटर बड़ी तादाद में फराम किए, तब मकामी लोगों ने शिकायत की है कि अस्पतालों में उनका इस्तेमाल ना के बराबर है, जिसकी सबसे बड़ी वजह ऑक्सीजन प्लांट का न होना है। उधर सुरनकोट सब जिला अस्पताल में अगरचे इंतजामिया ने 10 वेंटिलेटर फराम किए, तब बदकिस्मती से सिर्फ 2 ही इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं, जिस दौरान मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गवर्नमेंट को ऑक्सीजन प्लांट लगाना चाहिए और इनको वर्किंग में लाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो है पेंडेमिक जो है कोविड-19 का जो सिस्टम चल रहा है, ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है और लोग परेशान भी हैं। हमें अपने लोगों को यहाँ से जम्मू मेडिकल कॉलेज में, श्रीनगर में जो है शिफ्ट करना पड़ता है। जब हमारे पास वेंटिलेटर यहाँ मौजूद हैं तो ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं लगा रहे हैं? कि वेंटिलेटर को चलाने के लिए ऑक्सीजन रेगुलर की ज़रूरत होती है, और प्लांट अभी नहीं लगा, लेकिन हमारे पास जम्बू सिलेंडर हैं, बड़े सिलेंडर जो हमारे पास 4 आए हैं, उसके बाद 20 सिलेंडर गवर्नमेंट ने हमें और दिए हैं छोटे वाले, कि ये आप अपना ज़ख़ीरा रिजर्व रखें और जो 2 अपने वेंटिलेटर स्टार्ट कर दिए इनको आप चला सकते हैं। विदाउट ऑक्सीजन प्लांट ये चल पा? देखिए, थोड़ा सा इसको रेगुलर चलाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन रेगुलर सप्लाई चाहिए, और फिर ये सिलेंडर जो है इनको हमें जम्मू से जाके बार बार भरा के भी लाना है। फिलहाल थोड़ी सी कमी तो ज़रूर है, लेकिन फिर भी हमारी जो पाइपलाइन यहाँ बिछानी है या ऑक्सीजन प्लांट बनाना है, उसके लिए भी मैकेनिकल डिवीज़न जो है वो भेजा था डायरेक्टर मैडम ने, और आके यहाँ से वो मेजरमेंट करके ले गए हैं। AAA प्रिपेयर हो गया है, फंड्स जो उनको रिलीज़ हो रहे हैं, और हमें होप है कि जल्दी ही हमारा यहाँ पर मैनीफोल्ड और ऑक्सीजन प्लांट दोनों चीज़ों से एक चीज़ हमारे यहाँ पर अवेलेबल कर दी जाए। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।